Namaskar, good afternoon to all of you. Welcome you all to the press conference conducted by Press Information Bureau. This PC is being live streamed on PIB social media handles. Today we have the privilege of having with us the cast and crew of Khoya Paya. It is a movie that was screened today. It will be screened today. Already screened today. And it's a movie in the Indian panorama. This is the world premiere of the movie at IFFI. We have with us the noted and acclaimed actor Seema Biswas, Chandan Roy Sanyal, who is also the actor of the movie, Anjali Patil, she's the actor, Ashutosh Singh, this is his directorial debut with the movie, and Himanshu Rai, the producer of the movie. So before I begin, I will just give you a brief introduction followed by the trailer of the movie and then the synopsis. सीमा जी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करूंगी। सीमा जी की जो मूवी थी फूलन देवी का जो उनका किरदार था शेखर कपूर की मूवी बैंडेड क्वीन, ये हमारे दिमाग में एक बड़ा सेटल सा इमेज है। एंड शी वॉन दी national award for her role as Phulan Devi in Bandit Queen. Then she's known for her deeply nuanced roles in films like Khamoshi the Musical, Ruth and Water. For Khoya Paya, she brings extensive experience in character-driven story to the ensemble, adding gravitas with her command of emotional realism and social nuance. We also have with us Chandan Roy Sanyal, who is famous for his role as Bappa Swami in the OTT series Ashram. Though he began his career with Rang De Basanti and he gained recognition for his performance in Kamine, he has worked both in Hindi and Bengali movies, and his theatre training and ability to inhabit complex characters makes him a key presence in Khoya Paya, where his layered performance style complements the ensemble. Then we have with us the National Award winning actor Anjali Patil. She has worked in Marathi, Hindi, Telugu and Tamil cinema. She has received critical acclaim for roles in films such as Chakravyuh, With You, Without You, and for this she has won the IFFI Silver Peacock Award and also a National Award for Telugu Special Mention. And her other movie is Kon Praveen Tambe, which is very famous. Patil's training in theatre, she is from NSD, and martial arts, along with her interdisciplinary approach, brings authenticity and emotional depth to her roles, including her performance in Khoya Paya. We have Ashutosh Ji, who is the director, and this is his first movie. And we also have with us Himanshu Rai Ji, the producer of the movie. So this trailer sets the tone for the press conference. I don't think I need to talk about the synopsis because we've seen the performance ourselves. What a performance! And now I would request Seema Biswas Ji to give her opening remarks. I feel myself proud that I am part of Khoya Paya, this movie, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जो कि बहुत ही दिन ब दिन कॉमन होते गए हैं कि माँ बाप एक उम्र के बाद बोझ लगने लगता है और कोई छोड़ आते हैं तो कोई छोड़ देते हैं, कोई भाग जाते हैं। तो ऐसे में मेरे लिए ये है कि ये फिल्म करना मतलब उन लोगों को कहना जो नॉन सेंसिटिवली पेरेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं, जो लोग अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, जिन्होंने पैदा किया है, तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि डोंट डू दिस। बहुत ही हमने एक बहुत प्यारे टीम ने हमने बहुत प्यार से इसको कंप्लीट किया है, जो कि हम महाकुंभ में जाके जो अब की बार इस साल का जो सबसे बड़ा महाकुंभ था उसमें हमने शूट किया है बिल्कुल लाइव। तो काफ़ी टफ था मगर काफ़ी एडवेंचरस खुद को महसूस हुआ कि एकदम चैलेंजिंग है, जो कि एंजॉय भी कर रहे थे हम।
entire team, and thanks to Ashutosh for trusting me for this role. और ऑडियंस बताएंगे कि मैंने उसको जस्टिस किया कि नहीं, बट हमारे सबके टीम, पूरे टीम की कोशिश है कि जो हम कहना चाहते हैं वो ऑडियंस तक पहुँचे. Now I would request Chandan ji to talk about his experience in the movie. Hi, good afternoon. My experience. I would say the experience being an actor. Sometimes we choose to do things which we are not, and we don't. Some things are forbidden in life, but still, as an actor, you try to be brave and you try to be more ambitious, or you try and approach a world you don't want to be in. क्योंकि हमारे देश में एक तरह से माँ पूजी जाती है. आई ऑल्सो हैव एन ओल्ड मदर एट होम, तो उनकी देख रेख करना, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि किस तरह उनका क्षय हो रहा है और वो उम्र बढ़ती जा रही है, चाल ढीली पड़ रही है, सर्दी होती तो बढ़ जाती है, बुखार आ जाता है, दांत में दर्द है. तो ये रोज़मर्रा के जीवन में एक बेटे होने का मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाता हूँ. और वहाँ पे एक आदमी मुझे मिलता है, आशुतोष सिंह करके, बोलते एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें ये जो रोल है ये आप करेंगे, और ये रोल जो है वो अपनी माँ को कुंभ मेले में छोड़ के आ जाता है. मैं बोला यार ये किस तरह रोल पकड़ा रहे हो यार तुम, हाँ जनता तो गालियाँ पड़ेंगी मेरे को. एक तो यहाँ पे माँ पूजी जाती है, बोलेगी माँ ये, और अब तुम कह रहे हो कि तुम माँ को घर से बहला फुसला के ले जाएंगे. ऐसी कहानी सुना रहा है, पहला फुसला के ले जाएंगे फिर आप मेले में छोड़ के आ जाएंगे, हैं. और वही कहानी थी एक्चुअली. तो फिर लेकिन जिस तरह से आशुतोष ने पूरी फिल्म को पिरोया, जिस तरह से लिखा, ताना बाना बुना उसका, तो स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत लगा कि जो पूरी दुनिया, और कुंभ फिल्म का जो प्रोसेस भी था बहुत ही अनोखा था, क्योंकि एक तो आशुतोष वहीं से आते हैं, आज उनकी पूरी फैमिली से भी मिला, पूरे परिवार सब उसी इलाके से हैं. तो ये मेरे साथ जो दो एक्टर हैं, इनको ये भी इसमें हामी भरेंगे इस बात पे कि अपने घर में ले गया, बोले मेरी बुआ का घर है ये, मैं यहाँ पे बचपन में आता था, वो गली में मेरा स्कूल था, यहाँ पे ये था, उस पेड़ पे मैं गिर के मेरी टांग टूट गई थी. ये सब कहानी सुना के उसी परिवेश में जहाँ पे ये बड़ा हुआ है हमको ले गया, और वहाँ पे उसने हमको झोंक दिया वहाँ पे. तो वो एक मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था कि आई वाज एक्चुअली, obviously he's not like me in real life, he really loves his parents and he's got them here for the premiere, but I was supposed to play a son unlike him or me. I think I'm a obedient son of my mother. तो ये प्रोसेस बहुत अनोखा रहा कि एक ऐसा चरित्र कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक तरह से हमारे समाज में या हमारे सोसाइटी में विलेन समझा जाएगा. तो वो बहुत, अगर आप फिल्म देखेंगे तो वो बहुत एक बहुत महीन सा फासला था, एक धागा था जो कभी भी टूट सकता था, और जहाँ मैं उस चरित्र को करते करते शायद मैं विलेन बन जाऊँ. लेकिन वो आशुतोष की मदद से ऐसा हुआ कि विलेन नहीं बनने दिया मैंने. वो एक ऐसा बेटा बना जो उसको समझ पे भी आता है बाद में, और वो कंफ्यूज हो जाता है. कई बार जो हमारे ज़िंदगी में हमारे साथ होता है कि शायद हम ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जब आप पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट नहीं हो पाते हैं, आपको डिसीजन इस समय लेना पड़ता है. तो स्पिरिचुअली ऑल्सो, सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा जवाब दे रहा हूँ. स्पिरिचुअली ऑल्सो आई फील व्हेन यू लुक एट, समटाइम्स वी अप्रोच लाइफ इन अ वे वेयर वी सॉर्ट ऑफ जज अदर पीपल, कि इसने अगर ऐसा मुझसे बोला तो आपको गुस्सा आता है, आप पे द्वेष आता है. लेकिन जब आप देखेंगे, सोचेंगे स्पिरिचुअली, तो हर इंसान, वो कितना ही बड़ा विलन क्यों ना हो, उसका भी एक पक्ष होता है. वो पक्ष समझना बहुत ज़रूरी है. तो थैंकफुली समहाउ माई स्पिरिचुअल टीचिंग्स हेल्प मी अप्रोच द रोल नॉट इन अ विलेनस वे, बट इन अ वे वेयर आई कुड प्ले इट इन अ वे दैट आई कुड जस्टिफाई फॉर व्हाट आई वाज डूइंग इन द फिल्म. इट्स मतलब ट्रेलर देख के अच्छा लग रहा है मुझे खुद को भी. तो बहुत, मतलब बहुत ही सिंपल
प्रोसेस रही। आशुतोष ने जब कहानी बताई तो वो तो कहानी इतनी मतलब बहुत ही सिंपल है, और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सिंपल चीज़ें लिखना बहुत मुश्किल हो गया है। और दूसरा एक कारण था सीमा का, कि मैं वो मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। ये मैंने बहुत ही क्लियरली बोला था कि ओके, स्टोरी माँ बेटे की स्टोरी है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे बस उनके साथ रहने को मिलेगा। वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और क्योंकि आप एक कलाकार से सिर्फ आप स्क्रीन पे नहीं सीखते हो, जो ज़िंदगी वो जीते हैं उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। और मैं अभी जस्ट कह रही थी कि जेनरॉसिटी जो है सीमा मैम में वो बहुत है, और वो हमने एक्सपीरियंस भी बहुत की। तो एक फैमिली की तरह, जैसे आशुतोष के गांव में घर में जाके हमने किया, वैसे माँ की तरह सीमा बा हमें रोज़ खाना बना के पका के खिलाती थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरा कुंभ में कोई सेक्शन मतलब मेरा शूट नहीं था, और ये सब शूट करके आए थे, और ये इतनी अच्छी भयंकर कहानियाँ थी इन सब के पास। तो वो सुन के भी मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही कुछ कमाल का करके आए हैं, वॉरियर्स की तरह लौटे हैं सारे, और बहुत मेहनत की है सारे लोगों ने। स्पॉट बॉयज़ से लेके आर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन सब ने, आशुतोष ने बहुत ही अच्छे और उम्दा लोगों की टीम बनाई। और एक हिमांशु प्रोड्यूसर जो है हमारे, वो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर इंडिया में हम सोचते हैं कि ओके प्रोड्यूसर इज़ समवन हु वुड जस्ट गोइंग टू फंड इट, इन्वेस्ट इट, मगर स्क्रिप्ट में उस स्क्रिप्ट पे भरोसा रखना, वो डायरेक्टर के बाद सबसे बड़ा अगर कोई रिस्क और फेथ जो होता है वो प्रोड्यूसर का है। तो इस सब्जेक्ट और स्टोरी पे उन्होंने फेथ रखा, और हम सबको ये प्लेटफॉर्म एक दूसरे के साथ काम करने को मिला, इफ़ी में आने का मौका मिला। ब्यूटीफुल, आई जस्ट फील वेरी हैप्पी, और हम सबकी मेहनत अभी ऐसे रंग ला रही है, ऐसा लग रहा है। उनके विचार जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरी ये पहली फिल्म है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था कि कुंभ में जा कर के हमें शूट करना है। सबसे मतलब आप कंट्रोल कंडीशन में शूट कर सकते हो, आराम से शूट कर सकते हो। लेकिन पहली फिल्म में इतने बड़े महासागर में जा कर के 66 करोड़ लोग आए हुए हैं, वहाँ पर स्टैम्पीड हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वहाँ पर, बट वी हैड टू मैनेज इट आउट। और वहाँ जाने के बाद हमें जो फिल्म मिली है, हमने फिल्म का कलर वहाँ जा कर के पाया। उससे पहले हमें फिल्म बहुत सारे अलग कलर्स में दिख रही थी। जब कुंभ में पहुँचे हैं, हमने शूट करना शुरू किया है, जो रस था फिल्म का, हमने इनफैक्ट 1-2 गाने थे वो भी हमने हटा दिए फिल्म से कि यहाँ के रस के लिए हमें दूसरे गाने चाहिए। तो फटाफट फिर हमारी टीम दूसरे गाने बनाई, और हमने जो क्योंकि आज के टाइम पे जो कुंभ हो रखा है वो बड़ा कंटेम्प्रेरी प्लस फोक सब चीज़ का मिक्स है। तो उन सब चीज़ों को हमें लाना था जो जस्टिफाई कर सके कि आज की दुनिया के भी लोग आ रहे हैं, एवरीबडी इज ऑन देयर मोबाइल्स डिवाइसेस, और डिजिटल यात्राएं हो रही हैं वहाँ पर, लोग डिजिटल डुबकी ले रहे हैं यूएस में बैठे हुए। तो नई चीज़ें, नए जार्गन्स आ रहे हैं जिनको हमें जस्टिफाई करना था, इनकॉर्पोरेट करना था, और उनके संग कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। तो वो सब करते हुए कुंभ वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट। एंड देन वी वेंट टू आवर माई विलेज, जिसमें मैं पला बड़ा। तो इट वॉज प्रीटी स्मूथ, घर में रह करके फिल्म शूट कर रहे हैं। वी यूज्ड टू गेट अप, हैव फूड एंड शूट फॉर 10-15 days, 20 days। वी हैड कुंभ के मेले में कितने पेरेंट्स हैं उनको छोड़ के जाते, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आई वांट टू नो कि आप जब शूट कर रहे थे, डिड यू रियली कम अक्रॉस सच स्टोरीज, एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस कैरेक्टर, आफ्टर द रैप अप ऑफ दिस शूट, व्हाट डिड यू फील एज अ ह्यूमन, एज अ एक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फिल्म से पहले भी मैं बहुत सारे फैमिलीज़ के मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। नॉट एग्जैक्टली मेरे इमीडिएट फैमिली में कहीं भी, बट बहुत आसपास के मैंने बहुत देखा है। और मैंने बाकायदा पकड़ के मैंने बोला है, कभी भूल गए अभी जो चिढ़ रहे हो कि मम्मी ने सुसु कर दिया, गंदा कर दिया, बेडशीट ये कर दिया, कभी याद करते हो कि तुमने कितनी बार सुसु किया है, कितने बार पॉटी किया है? कैसी बातें करते हो, उनके मुंह के सामने मत बोला करो।
सो ऐसी चीज़ें हम बहुत देखते हैं, आपने भी देखा होगा, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, बट ऐसी चीज़ें, और सिनेमा इट्सेल्फ इज सच ए स्ट्रॉन्ग मीडिया कि उसको कम्युनिकेट करना और कनेक्ट करना बहुत अच्छा है। तो जिसके लिए मैं उसको बहुत अलग स्टोरी नहीं है, इन द सेंस वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और बढ़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि सबकी आदत ऐसी है, काफ़ी ऐसे हैं कि बहुत सेंसिटिव, वेरी केयरिंग, काफ़ी बार लोगों को सुनने को भी मिलता है, मामा सन ऐसे ऐसे करके भी कहते हैं, क्योंकि शादी के बाद ही जो है लड़का बोलता है मेरी माँ के हाथ का खाना तो अलग ही होता है, होता है, इस तरह का भी होता है। बट काफ़ी लोगों का ऐसे होता है, तो होता क्यों है, नॉर्मल क्यों नहीं हो पाते हैं? और हम इंडियन को और ज़्यादा, क्योंकि हमारे वो हैबिट तो है नहीं कि 70 साल के बाद बच्चा अलग रहते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं। मैं कहती हूँ कि अलग रहे, कोई बात नहीं, वो बात नहीं है, बट रिस्पेक्ट, केयरिंग, वो सब एक बेसिक चीज़ें, हिकारत से मत करो, बोझ मत महसूस करो। तो फिर भी हम कैसे और ज़्यादा डीपली कलेक्टिवली, हमने एक छोटा सा वर्कशॉप्स भी हमने किया, बहुत बहस होती थी, काफ़ी डिस्कशंस होते थे, कभी मेरे कैरेक्टर के चीर फाड़ करके अंजलि बोलते थे या चंदन बोलते थे या आशुतोष, हम ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें निकाले, एंड हमारे अंदर बैठ गया था सबके, लाइक व्हाट आई एम डूइंग ये। एट द सेम टाइम एक्टर्स का होता है ना, बट उस समय उस माहौल में जब रहें तो वी वर रियली लिविंग विद द कैरेक्टर। जो और बाकी क्योंकि पहले से, इस फिल्म से पहले भी काफ़ी एग्जांपल्स आंखों के सामने था, तो ऐसा भी नहीं कि लाइक मैं उससे निकलना, मतलब ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि मुश्किल है। और मैं, भले मैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, बट मैं, मेरे पास मदरली क्वालिटी ठूस ठूस के भरा हुआ है तो सो यह है, आई फील, बस यही कहूँगी कि प्राउड दैट आई डन दिस मूवी। भाई मुझे याद है, मैं जिस दिन रात को उसको फ़ोन किया ना, आई रेड द स्क्रिप्ट, मैंने कहा मैं अभी बहुत एकदम जैसे चोक्ड हो गई हूँ, मैं अभी बात नहीं करूँगी, बट रियली हार्ट हिटिंग स्टोरी है, बहुत बहुत अच्छा लिखा है आपने। 2 दिन बाद बात करूँगी, अभी मैं डिस्टर्ब हूँ ऐसा। तो प्रोसेस में शायद शूटिंग में हमने जो करोड़ों वाली भीड़ में ऐसे ऐसे सारे प्रोसेस में धीरे धीरे निकल आया, और शो मस्ट गो ऑन जैसे एटीट्यूड रहता है एक्टर्स का, व्हाट इज़ नेक्स्ट पे निकल जाते हैं। थैंक यू।